حضرات محترم، آج ایسے لوگ جو ایک کمرے میں بیٹھ کر اپنے آپ کو محدث اور کیا سے کیا کہہ کر ہمارے اور آپ کے امام حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ذات سے بغض و عناد پیش کر رہے ہیں اور اپنے تھم نیل پر ایسی باتیں لگا دینا کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ افضل ہیں یا حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ افضل ہیں۔ حضرات محترم، صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دین حاصل کیا، مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے، اذیتوں کا سامنا کرتے ہوئے، تکالیف کو سہتے ہوئے انہوں نے دین کا دامن اور محمد مصطفیٰ کی محبت کا دامن اپنے ہاتھ سے نہ چھوڑا۔ یہ ہیں ہمارے اور آپ کے پیارے صحابہ کرام۔ اب وہ صحابہ کرام کے جو آگے شاگرد ہوئے تو پھر صحابہ کرام نے جس طرح حضور علیہ السلام نے جس طرح خوبصورت انداز میں صحابہ کرام کو دین سکھلایا، بتلایا، اب صحابہ کرام کو اس بات کا علم تھا کہ جتنی مشکلات کے ساتھ دین حاصل کیا جاتا ہے، اس کا تحفظ کیسے کیا جاتا ہے، اس دین کے لاڈ کیسے کیے جاتے ہیں، صحابہ کرام نے پھر اسی ایمانداری کے ساتھ اپنے شاگردوں میں اس دین کو منتقل فرمایا، اتنی محبت کے ساتھ، اتنی خلوصیت کے ساتھ اپنے شاگردوں میں اس دین کو، اور آگے انہی شاگردوں نے پھر اپنے شاگردوں کو، لیکن وہ شاگرد جو صحیح جو ترتیب مصطفیٰ کو سلامت رکھے افضلیت شیخین اور محبت الختنین کو برقرار رکھا، ان شخصیات نے اہل بیت اطہار کے ساتھ محبت کو اپنا ایمان سمجھا، بلکہ آپ کا یہ عقیدہ تھا، یہ نظریہ تھا کہ آپ کا جو طبی رجحان و میلان تھا وہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کی وہ اولاد جو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن عطر سے تھی، آپ کا طبی رجحان و میلان اس طرف تھا، لیکن اس میلان کی وجہ سے اس شخصیت کے پاس بس شہادت کی تھوڑی سی کسر رہ گئی تھی۔ یہ اہل بیت کے ساتھ محبت تھی، یہ نواسہ رسول کے ساتھ محبت تھی، لہذا یہ صحابہ شیخین کی محبت کو، شیخین کی افضلیت کو بھی برقرار رکھا، محبت الختنین کو بھی برقرار رکھا، آل رسول اولاد رسول کی محبت کو بھی سلامت رکھا۔ ارے پھر وہ ذات جو اللہ اور اس کے رسول کے رستے پر چلی، صحابہ کرام کی ترتیب کو، صحابہ کرام کی ترکیب کو سلامت رکھا، پھر اس شخصیت کا نام نعمان بن ثابت تھا، لیکن ایمان والو جب سے اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنہ مبارکہ پر قربان کر دیا، صحابہ کرام کے ساتھ محبت اور ادب و احترام کرتے ہوئے انہوں نے قربان کر دیا، اہل بیت اطہار کے ساتھ محبت کو اپنا ایمان سمجھا، نواسہ رسول اولاد رسول کے ساتھ محبت کو اپنا ایمان سمجھا، تو نام کے ساتھ تو نعمان بن ثابت تھا، لیکن اس کے بعد امت محمدیہ میں سید الفقہاء کے نام سے پہچانا گیا۔ سبحان اللہ۔ امت محمدیہ میں امام اعظم کے نام سے پکارا گیا، ارے پہچانا گیا امام اعظم رحمت اللہ علیہ کی نام سے، اور پہچانا گیا امت محمدیہ میں ابو حنیفہ کے نام سے پہچانا گیا۔ ایک مرتبہ آپ مدینہ شریف میں تشریف لائے، یہ ہے ادب، یہ ہے احترام، یہ ہے محبت۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ آپ تشریف لائے تو حضرت امام باقر رحمت اللہ علیہ کے ساتھ ملاقات ہو گئی۔ اب حضرت جس طرح آج یہ کہتا ہے نا کمرے میں بیٹھ کر جیلمی کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ قیاس کو قرآن و حدیث پر ترجیح دیا کرتے تھے، یہ جب حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا ابھی نیا چرچا شروع ہوا تھا نا، اس وقت یہ بھی الفاظ اس وقت نکلے تھے کہ جب حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا یہ چرچا ہوا تھا تو حضرت امام باقر رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں، نواسہ رسول کی بارگاہ میں بھی یہ الفاظ پہنچے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ آپ حضرت امام باقر رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں ملاقات کرنے کے لیے آئے تو حضرت امام باقر رحمت اللہ علیہ آپ کھڑے ہو گئے، کیونکہ وہ الفاظ آپ تک پہنچ چکے تھے کہ قیاس کو قرآن و حدیث میں داخل کیا کرتے تھے،
सबकत दिया करते थे क़ियास को कुरान और हदीस में, तो हज़रत इमाम बाक़िर रहमतुल्लाह अलैह खड़े रहे। आप फरमाने लगे आपको हमारी मजलिस में बैठने का कोई हक नहीं है, हज़रत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह से। अब क्या हुआ हज़रात मोहतरम, नवासे रसूल के सामने अदब व एहतराम को देखिएगा कि हज़रत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह अर्ज़ करने लगे हज़रत आप अगर तशरीफ़ फरमा हो जाते हैं तो मैं बड़े बाअदब तरीके के साथ मोदबाना अंदाज में आपकी बारगाह में कुछ गुजारिशात पेश कर सकता हूँ, क्योंकि आप हमारी नज़र में इस तरह लायक एहतराम हैं जिस तरह आपके नाना जान मोहम्मद मुस्तफ़ा सहाबा किराम की नज़र में हुआ करते थे। ये अदब है, ये एहतराम है, ये मोहब्बत है, इसको अपनाओ। ये इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह हैं जिन्होंने कुरान का इल्म हासिल किया, हदीस पाक का इल्म हासिल किया। आज ये नौजवानों में ये वसवसे डाले जा रहे हैं कि दोनों का मुकाबला, इमाम अबू हनीफा का मुकाबला, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का मुकाबला। हज़रात मोहतरम दोनों में आपस में कोई मुकाबला नहीं है। हज़रत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह भी 100% दुरुस्त हैं और हज़रत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह भी 100% दुरुस्त हैं। वाह वाह वाह। इनका आपस में कोई इख्तिलाफ नहीं है, आपस में कोई, बल्कि अगर मुकाम देखा जाए, मर्तबा देखा जाए तो हज़रत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह मुकाम में बहुत बुलंद हैं। हज़रत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह इमाम हैं फ़िकी मसाइल के। उम्मत मुहम्मदिया ने फ़िकी मसाइल में इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की ज़ात को फॉलो किया है और हदीस में सही असनाद के साथ एक कुतुब में शामिल कर देना, ये इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का मुकाम है। इसी वजह से आपको अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस का लक़ब मिला है। हज़रत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह मुकाबला कोई नहीं है, लेकिन अगर मुवाजना किया भी जाए तो हज़रत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह बुलंद मुकाम पर फाइज है। हज़रत मोहतरम हज़रत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह फ़क़ीह हैं और फ़क़ीह के लिए मुहद्दिस का होना ज़रूरी हुआ करता है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह मुहद्दिस हैं, हज़रत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह फ़क़ीह हैं। जब तक कुरान और हदीस का इल्म का मालिक इंसान ना हो जाए उससे फ़िकी मसाइल कैसे निकाला जा सकता है। लिहाजा अपनी सोचों को, जो लोगों को आज वसवसों में डालने की वो कोशिश कर रहा है, अगर देखा जाए तो हज़रत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द हैं हज़रत इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द हैं हज़रत इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द हैं हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह और हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द हैं हज़रत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह। कितना बड़ा मुकाम है, लेकिन आज नौजवानों के ज़हनों में आज ये वसवसे डाले जा रहे हैं, आज मुकाबला बाजियाँ की जा रही हैं। हमारे और आपके इमाम हज़रत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के मुतालिक ऐसे थंबनेल लगा देना, ऐसा आज थंबनेल लगा देना कि अब जनाब रफ़ा यदैन करना, अब ऐसी हदीस पाक आ गई है कि अब आप पर रफ़ा यदैन करना लाजिम हो जाएगा और नौजवान सोचने पर मजबूर हो रहा है। रफ़ा यदैन किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा। हज़रात मोहतरम इन मसाइल की तहकीकात हो चुकी हैं। जो रफ़ा यदैन करने वाले हैं, जो वो भी किसी इमाम को मानने वाले हैं और जो रफ़ा यदैन नहीं करने वाले हैं वो भी किसी इमाम को मानने वाले हैं। लिहाजा इस पर तहकीकात हो चुकी हैं, आज इन पर कोई तहकीक नहीं है। हमने जब इस मसले को बयान किया कि रफ़ा यदैन वाला ना करने वाला, बल्कि हम तो अपने मानूस लोगों को कहते हैं जो रफ़ा यदैन करते हैं उनका भी मजाक ना उड़ाया जाए, जो रफ़ा यदैन नहीं करते उनका भी मजाक ना उड़ाया जाए। हमारे और आपके इमाम हज़रत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, आप फ़िकी मसाइल में आप रफ़ा यदैन नहीं फरमाया किया करते थे। आज नौजवानों के ज़हनों में ये इख्तिलाफ़ात को पैदा कर देना कि रफ़ा यदैन करना है कि नहीं करना। हज़रात मोहतरम इसकी बात जो उसके फॉलोअर्स अगर नहीं ना समझना चाहते तो उनको समझ नहीं आ सकती, लेकिन जो समझना चाहते हैं उनको समझ आ जाया करती है। जो नहीं समझना चाहते, हमने जब उसका तअक्कुब किया, मिर्ज़ा चेलवी का हज़ारों की तादाद में उसके व्यूज़ हैं, अवाम उसको समात कर रही है, नौजवान उसको समात कर रहे हैं। अब उसके फॉलोअर ये कह रहे हैं कि मिर्ज़े को जवाब देना चाहिए। कहाँ से देगा, कहाँ से देगा, क्योंकि उसमें तो कुरान पाक शामिल है। कुरान पाक की आयत के अलावा और कोई चीज़ है ही नहीं है।
जवाब कहाँ से लाएगा। कहता है नौजवानों ने ये आपसे मैंने ये बातें शेयर करनी थी, जब आपने मेरे साथ फोन पे बातें की ना कि अब वो आपको गालियां दे रहा है, हमने कहा इस बात को आप लोगों ने महसूस नहीं करना, जब बंदा लाजवाब हो जाता है ना तो फिर वो गाली दिया करता है। ये स्वीडन में क्या हुआ, जब वो लोग कुरान पाक से लाजवाब हो गए, उन्होंने अपनी इस कमीनी हरकत पर उतर आए कि उन्होंने कुरान पाक के साथ कैसा सलूक किया है। जब इंसान लाजवाब हो जाता है फिर गाली देने पे उतरता है। हमारा कोई इस मामले में झगड़ा नहीं है, लिहाजा ये जो रफ़ा यदैन करना हुजूर फैज़ आलम की बारगाह में ऐसे ऐसे अल्फाज अदा कर रहा है, तो जो नहीं समझना चाहते वो हमने तो कुरान पाक के जरिया से उसको साबित करके दिखलाया है। जो नहीं समझना चाहते तो थोड़ी सी यहाँ देर है, ये दरियाए सिंध है, इसको पार करे ना तो वहाँ पर एक बड़ा मशहूर मुहावरा है, भाई कोचा हम 20 साल का है और 20 साल के बाद भी 20 का ही रहेगा। ये मशहूर बात है, ये बड़ी लिहाजा जो नहीं समझना चाहते ना उनके सामने कोई जिद नहीं है।